in this village with this church. तो मैं अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकता इस गांव के साथ, तो इस चर्च के साथ मेरे बड़े ही मतलब क्लोज संबंध हैं। Because when this church was built, जब ये चर्च बन रहा था, it was only the post. यहाँ खाली मतलब एक तरह से बनना स्टार्ट नहीं हुआ था। That time also we are here and we cut our hair, we play around here. So like before that also I was here. तो उस समय मैं यहाँ था, तो यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था, खाली मतलब पुराना एक जगह थी, यहाँ पे हमने बाल कटिंग की और बहुत सारी एक्टिविटी उस टाइम पे की थी। But I'm so happy to see God has lifted up this building in very such a way that we could have a place to worship the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा कि परमेश्वर ने इस जगह को खड़ा किया और यहाँ पर बैठकर आराधना करें। So for this morning I would like to share to you from John chapter 15 verse 5. तो इस समय हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां आयत और उसकी 15वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। So I would like to request anyone to read for us like John 15:5. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। That is what I would like to tell this morning. ये वो चीज़ है जो मैं आपको बतलाना चाहूँगा इस सुबह के वक्त। We all are branches in this world. हम शाखाएं हैं संसार के अंदर। Jesus is the only vine that which we all need to connect to Him. परमेश्वर यीशु मसीह एक मतलब दाखलता है जिसके साथ हमें जुड़ने की जरूरत है। How can I bear fruits without connecting to the root? How can I bear, being a branch, how can I bear fruits? एक शाखा होने के नाते अगर मैं मेन पेड़ से ना जुड़ूं तो मैं कैसे फल ला सकता हूँ? Forget about the fruit. I will be like dead. I'll be dying because of that. If I don't connect myself with the branch, any trees give fruits because it has a very good connections with the main vine or the main branch. But if our life, so like which I would like to compare, is like if we don't have a good connection with Christ, then how are we going to bear a good fruits of being a Christians? अगर हम एक शाखा को देखें, अगर वो मेन तने के साथ नहीं जुड़ी है तो फल नहीं ला सकती, यहाँ तक कि वो मृत हो जाएगी। अगर इसी बात को हम देखें, अगर हम मसीह यीशु के साथ नहीं जुड़े हैं तो हम भी उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, हम भी मतलब फल नहीं ला सकते। We all are recognized by the main vine that which we are connected. हम सभी जाने जाते हैं उस मेन शाखा के द्वारा जिससे हम जुड़े हुए हैं। I'm connected with the, for example, I'm connected with mango trees. अगर मैं एक उदाहरण लूं कि मैं एक आम के पेड़ के साथ जुड़ा हूं And I'm giving a fruits of pineapple. और मैं जो अनानास है उसका फल मैं दे रहा हूँ, Do you think it will be possible? ऐसा Yeah. संभव हो सकता है? I'm connecting with the apple tree and I'm bearing fruits of pumpkin. कि मैं भाई सेब के पेड़ के साथ जुड़ा हूँ और पंपकिन का फल दे रहा हूँ मैं। It can never be. Being a Christian, if I'm connected with Jesus, I should have the character of Jesus in me. अगर मैं मसीही जीवन के बारे में देखें, अगर मैं मसीह के साथ जुड़ा हूँ तो मसीह का स्वभाव मुझ में से दिखना चाहिए। If I'm connected with Buddhist or if I'm connected with Jain, that Jain and Buddhist character should be in me. अगर मैं जैन या बुद्धिस्ट के साथ जुड़ा हूँ, उन धर्मों के साथ जुड़ा हूँ, तो उनका स्वभाव मेरे अंदर से दिखना चाहिए। So we all are Christians here. अगर हम देखें, हम सारे के सारे यहाँ पे मसीह हैं Jesus is the main tree. और यीशु मसीह हमारे बीच में We- प्रमुख शाखा है। We everyone are connected with Jesus, but our character which is not matching with Jesus. हम सारे देखने को या कहने को कहें तो मसीह के साथ सारे जुड़े हैं, लेकिन जब स्वभाव की बात करें तो हमारा मसीह के साथ मेल नहीं खाता। Let me tell you, friends, to claim ourselves as being a Christian, it's very easy. मसीह के साथ हम जुड़े हैं ऐसा दावा करना बड़ा आसान है। Let me tell you one very short story एक छोटी सी कहानी हम देखेंगे about Northeast. नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। Yes. And Northeast is the place where it's like fully jungle and forest and people are like primitive. और अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट उस जगह के बारे में तो वहाँ पे आप देखोगे कि मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल इस टाइप का इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं। People don't even wear dress also, they only cover this part and they roam around like that.
तो वहां पे ऐसा नहीं, मतलब वहां का माहौल ऐसा है कि वहां पे प्रॉपर ड्रेस भी नहीं पहनते, बस खाली अपने आप को ढकने के लिए कोई मतलब चादर वगैरह बांध देते। You might see in the movie also like that. You might be seeing the movie also. तो आपने कई बार फिल्मों के अंदर देखा होगा कि भाई जो जंगलों के अंदर लोग रहते, कबीलों के अंदर लोग रहते, उनका पहनावा आपने देखा होगा। That is not is. उस टाइप का वहां पे That is इलाका, my place. उस ऐसी जगह से मैं आता हूँ। But just because of Christians, when Christians missionary comes, they accepted Jesus, and now I cannot imagine. Northeast is much more farther than the place that I imagine. और जैसे ही मसीह के सेवक लोग वहां पे पहुंचे, मैं भूतकाल की बात बता रहा हूँ, पीछे टाइम की बात बता रहा हूँ कि ऐसा जीवन हम जिया करते थे जो आप फिल्मों के अंदर देखते हैं। लेकिन जब मसीह प्रचारक वहां पे पहुंचे और उन्होंने मसीह को ग्रहण किया तो उनका जीवन टोटली बदल गया। Now everyone's are like having a good life. Most of them. अगर वहां पे जाके देखें तो सारी चीजें बदल गई, पहनावा बदल गया, उनके जीवन का तरीका बदल गया। Like once upon a time, peoples are like, you won't believe, but it's true that peoples are even headhunter. They used to fight one another and they used to cut their hair and they used to take their head like that. एक ऐसा समय था, मैं एक ऐसे समय की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग इतने क्रूर थे, एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे, यहाँ तक कि उनका सिर धड़ से अलग कर दिया करते थे। See, we have our own boundary. Now I'm from Sivanka and that side is Gohana. So Gohana people cannot come to Sivanka. If they come, they will kill each other. अगर हम यहाँ पे एक संदर्भ के तौर पे एक उदाहरण ले, जैसे हम सिवानका से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और एक नियर बाई जगह है गोहाना, अगर गोहाना के लोग यहाँ आएंगे तो मतलब लड़ाई पक्का है। Even Sivanka also, if they go to their place, they also will fight again. अगर यहाँ के लोग गोहाना जाएंगे तो वहाँ मतलब लड़ाई पक्का है। We cannot cross our boundary. We have our own area. तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता था कि सबकी अपनी सीमाएं होती थी। अगर वो लोग सीमाओं को पार करके दूसरे की बाउंड्री में एंटर करते थे तो लड़ाई पक्का। And do you know the songs that I have decided to follow Jesus? Do you know that song? ऐसा गाना जो आपने सुना हो कि मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा। Yeah, everyone know? Yes. Then we will sing only one chorus and I will tell you what is the meaning behind it. Okay? Then in Hindi we will sing, okay? एक लाइन हम गाएंगे इसकी, जो पहले वाली लाइन है, और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा बिल्कुल। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। That song is written in my place. ये जो गीत है वहाँ उस क्षेत्र में लिखा गया, मेरे जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। Now the whole world, India and the whole world is singing that song, translating in many languages, but the original of that songs is written in Nordic. अगर हम देखें मूल रूप से गीत वहाँ पे लिखा गया, उसके बाद अलग अलग भाषाओं के अंदर, बोलियों के अंदर ये मतलब सॉन्ग ट्रांसलेट किया गया। That time it was like that when the king was persecuting Christians, like why are you joining Christians? So they are killing Christians that time. उस समय की अगर हम बात करें, वहाँ का जो कबीले का राजा होता था, जो भी था, जब उसके पता लगा कि लोग मसीह को ग्रहण करें तो उन्होंने उनको मारना स्टार्ट कर दिया, सताव करना स्टार्ट कर दिया। And there was one family, one son, mother and father. There was one small family. तो वहाँ पे एक छोटा सा परिवार था, परिवार के अंदर पिता, वहाँ पर एक बच्चा था। And the king was telling, why are you following Jesus? तो उस समय राजा ने उनसे पूछा कि भाई तुम मसीह के पीछे क्यों चल रहे हो? Christian is a foreign religion. You should not follow in notice. उन्होंने बोला कि भाई ये जो धर्म है ये हमारा नहीं, पराया धर्म है, दूसरे देश का धर्म है, आप इसके पीछे क्यों चले हुए? But that guy was saying, no, I have accepted Jesus. I will never give up anymore. तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। Then the king was telling, if not, I'm going to kill your wife. And that in front of him, his wife was killed. That is the true story I'm telling you. तो ये बड़ी सच्ची घटना है, जब उसने इनकार कर दिया कि मैं तो यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यहाँ से वापस नहीं लौटूंगा, तो उसी के सामने उसकी पत्नी का वध कर दिया गया, उसको मार दिया गया। Till after now also you are not going to give up, then I'm going to kill your son. And that moment they killed even his son in front of his eyes, and he said he denied it, I will not give up.
उसके बाद उसके बच्चे को सामने लाया गया, बोला गया अब भी इनकार कर दे, अन्यथा आपके इस बच्चे को भी मैं मार दूंगा आपके आंखों के सामने। लेकिन उस व्यक्ति ने इनकार नहीं किया प्रभु मसीह यीशु का, और उसके सामने उसके बच्चे को मार दिया। And at last he said, if you don't give up, I'm going to kill you. And that guy don't give up and he was killed. और अंत में उस व्यक्ति को भी चिताया गया कि अब भी मतलब तुम्हारे पास समय है, या तो आप उसके पीछे चलने से इनकार कर दो, नहीं तो आप भी नहीं बचोगे, आपको मार दिया जाएगा। Then the king, after they killed the family, the king was disturbed. No, who is that Jesus? People are dying for him. They don't even bother about their family, their life. What disturb हो गया? तो जैसे ही मतलब उस व्यक्ति को मार दिया गया, तो राजा भी पूरे मतलब सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए लोग मरने तक को तैयार हैं। The king was not able to sleep. The king was not able to sleep. The king was not even able to eat anything. He was like helpless. तो राजा के जीवन में तो ऐसा हो गया, ना तो नींद ढंग से आ रही, ना खाना ढंग से हो रहा, कुछ भी नहीं, हर टाइम चिंता उसको सताई जा रही। And finally, God speak to that king, and the king accepted Jesus. और लास्ट में परमेश्वर ने उस राजा के हृदय को भी छुआ, उस राजा ने भी मसीह को जाना। When the king accepted Jesus, the whole village, the whole people, how many thousands of people, one day they become to Christ. और जैसे राजा ने स्वीकार किया, परमेश्वर ने राजा के दिल को छुआ, तो हजारों की संख्या में लोगों ने उसी एक दिन के अंदर मसीह को ग्रहण किया। Then the king said, I have decided to follow Jesus. That king was written that song, and till today we all are singing. तो उस समय जो उस कबीले के राजा ने मतलब ये गीत लिखा कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैंने यीशु को ग्रहण किया। So being a Christian, before I thought it's very easy. I'm a Christian, I'm a pastor, but I know the consequences of being a Christian, the problems of being a pastor. हालांकि कहने को तो जैसे मैं बोल दूं कि मैं एक अगुवा हूँ, मैं एक मसीह हूँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए मसीह के पीछे चलने के जो परिणाम होते हैं। For example, let's not talk about outside. हम बाहर की बात नहीं करेंगे, लेकिन I talk about Dada. अगर हम यहीं का उदाहरण ले दादाजी के बारे में, When he shared me about his life, how he set up the Christianities in this place. जब उन्होंने मेरे को बतलाया इस गांव के अंदर किस प्रकार से प्रारंभ में उन्होंने मसीहत को स्थापित किया। Not easy. It's not easy. So many challenges, struggles he need to go through. We need to go through. It's not easy. I'm telling you. कितने सारे संघर्ष, कितने सारे उतार चढ़ाव जिनसे वो होके गुजरे और जिनसे हमें भी होके गुजरना है हमारे जीवन में। This is my request to everyone. If you consider yourself as a Christian, be a very faithful Christian. तो मेरी आप सभी से निवेदन है, अगर आप अपने आप को मसीह स्वीकारते हो तो इन सारे के सारे जो चुनौतियां हैं, इन चीजों के लिए आप तैयार रहें। Whatever is teach in the Bible, let's follow honestly. तो बाइबल भी बतलाती है कि यीशु के पीछे आप ईमानदारी से चलो। That we all will be like a good community, like a blessing community to serve God. तो ऐसे में हम परमेश्वर की सेवा करने वाली एक अच्छी प्रजा, एक मतलब अच्छे लोग कहलाएंगे। Thank you so much for the time, and this is what I would like to share. धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए। परमेश्वर की महिमा। राजीव के लिए अच्छा मैसेज दिया, तो भाई को आशीष दे और हमें दुखों में गुजरने के लिए तैयार रहना है। कोई बात नहीं, दुख हमारे जीवन में आएंगे और आएंगे, जाते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपकी अगुवाई करे।